तमिलनाडु में कल सियासत का नया चैप्टर शुरू होगा। अब से ठीक 12.5 घंटे बाद थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे और पहली बार तमिल की धरती पर गैर द्रविडियन सरकार का युग शुरू होगा। 0 सीट से डायरेक्ट 107 सीट पर पहुंचने वाले टीवी के चीफ विजय के लिए द्रविड़ राजनीति के किले को भेदना आसान काम नहीं था। 11 विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए विजय को पूरे 5 दिन का वक्त लगा। कई बार तो ऐसा लगा कि विजय जीती बाजी हार जाएंगे, लेकिन थलापति आखिर जीत गए। सवाल यह है कि विजय ने आखिर कैसे विजयी नंबर जुटाया, विजय के साथ कौन कौन आया, विजय के समर्थकों ने कैसे जश्न मनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. तमाम टर्न एंड ट्विस्ट आए, सस्पेंस पर सस्पेंस आए, लेकिन हाथ से निकलती हुई बाजी आखिरकार जीत गए विजय। सौ घंटे बाद विजय ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्टिंग में ही शेर नहीं है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के भी वो शेर है। थलपति विजय। कमांडर विजय। चीफ मिनिस्टर विजय। ये तस्वीर उस वक्त की है जब टीवीके के समर्थकों के पास कंफर्म खबर आ गई कि वीसीके ने विजय को समर्थन दे दिया है। इसके बाद विजय के समर्थक सड़कों पर निकल आए। सबकी जुबां पर एक ही आवाज थी, आवर चीफ मिनिस्टर थलपति विजय। तमिलनाडु का फ्यूचर थलपति विजय। This is a party starts before 2 years before. Now sitting in tomorrow we will sitting in CM posting. No one can destroy us. Don't underestimate anyone because no one can rule others. This is a party. This is a Tamil Nadu. Tamil Nadu is not for DMK and ATMK. This is a people's state. People who recommended the party, they only win. They only win. This. For this one word, we are waiting for from May 4th itself. Yeah. It touched our heart. Heartfelt moment. Yeah, we are very much happy. So happy because BCK and CPI are agreeing our Thalapathy Vijay because he will do all the things in the correct way. So that only they are supporting to our Thalapathy Vijay. अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि टीवी के चीफ विजय तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। वीसीके ने कंफर्म कर दिया है, कंफर्मेशन की चिट्ठी टीवीके को सौंप दी है। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिट्ठी में बकायदा वीसीके के दोनों जीते हुए कैंडिडेट टिंडी वन्नम के वन्नी आरसू और कट्टू मनार कोइल के कैंडिडेट LE जोठीमनी के समर्थन के सिग्नेचर हैं, जिसके बाद थलपति विजय 118 के मैजिक नंबर पर पहुंच गए, जिसकी तस्दीक खुद वीसीके के अध्यक्ष थोल तिरुमावलन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। After this, today morning, I have consulted with our party general secretaries, Sindhani Chelvan and Ravi Kumar. After a long discussions,
we have decided, like CPI and CPM, only for forming the government, no other commitments. We extended our support without any participation in the ministry, any other terms and conditions. Unconditionally, we have to support to Mr. Vijay to form his government. So, we have given supporting letter to TVK to attain the magic number 118. इधर वीसीके ने डिसीजन लिया, उधर आईयूएमएल ने भी बिना शर्त विजय को समर्थन देने की बात कह दी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 कैंडिडेट हैं जो अब तक विजय के समर्थन देने की बात पर स्टालिन की तरफ मुंह देख रहे थे। कल ही आईयूएमएल के तरफ से खबर आई थी, स्टालिन जैसा चाहेंगे वैसा ही वो करेंगे, लेकिन आज आईयूएमएल ने विजय के समर्थन का ऐलान कर विजय की राह और आसान कर दी। We contest the elections under the leadership of DMK, a secular progressive alliance. That alliance, we have got 2 seats, only 2 seats. Along with IUML, there are a number of parties like CPI, CPM, Vidalai Chirte Kachi, Congress, like that. All other allies, CPM, CPI, Vidalai Chirte Kachi, Congress, have given support for formation of the government in Tamil Nadu. In pursuance of that policy pursued by our other allies, IUML also has given support to the formation of government in Tamil Nadu under leadership of TVK. Sir, have you spoken with MK Stalin before this? We have discussed it a lot, yes. Yesterday also we discussed everything. मतलब अब साफ है कि विजय सरकार बनाने जा रहे हैं। नए सिनारियो के हिसाब से विजय के पास अब 118 नहीं 120 विधायकों का समर्थन मिल गया है, जिसमें टीबीके के 107, कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2, वीसीके के 2 और आईयूएमएल के 2 विधायकों को मिलाकर पूरे नंबर 120 हो गए हैं, जो बहुमत के मैजिक नंबर से 2 ज्यादा हैं। जो लोग विजय के बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स कोई एक्टिंग नहीं है, लेकिन विजय ने लाइट कैमरा एक्शन के साथ धांसू एक्टिंग भी कर ली और डायरेक्शन भी कर लिया और पॉलिटिक्स की बढ़िया पिक्चर भी बना ली। वैसे कहा तो ये जा रहा था कि एक्टर की पॉलिटिकल पिक्चर हिट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। नंबर के गेम में बड़े बड़े एक्टर्स की, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की पॉलिटिकल पिक्चर रिलीज तक नहीं हो पाती है। और जिस तरह से विजय के साथ कुछ घंटों में ऐसा हुआ है, उससे तो देखकर यही लग रहा था, लेकिन थलपति विजय ने देर ही सही नंबर गेम के गणित में बाजी मार ली। विजय के समर्थक जश्न मना रहे थे, लेकिन मामला कुछ देर बाद फिर गवर्नर ऑफिस में जाकर अटक गया। बताया गया गवर्नर केरल जा रहे हैं, पहले से प्रोग्राम फिक्स है, आज वक्त नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ देर बाद गवर्नर ऑफिस से विजय को वक्त मिल गया। 6:30 बजे विजय एक बार फिर समर्थन की चिट्ठी लेकर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंच गए। ट्विस्ट पर ट्विस्ट आए, लेकिन अब सब पर फुल स्टॉप लग गया। विजय की पॉलिटिकल पिक्चर हिट हो गई है। गवर्नर ने विजय को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। विजय कल चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
लेकिन थलपति विजय को पिछले 4 दिनों में 118 का नंबर जुटाने में नाक को चने चबाने पड़े। उनको ये तो अंदाजा लग गया कि रील और रियल में बहुत बड़ा फर्क होता है। इलेक्शन के मैदान में पिक्चर भले हिट हो जाए, इसकी रिलीज फंस भी सकती है, क्योंकि 4 मई के बाद से जब से नतीजे आए हैं, सुपरस्टार विजय के साथ यही हो रहा है। कभी 112, कभी 116, कभी 117 तक पहुंच जाते, लेकिन मैजिक नंबर 118 नहीं जुटा पाते। सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन दिया, फिर सीपीआई, सीपीआईएम ने समर्थन दिया, लेकिन वीसीके और आईयूएमएल ने समर्थन से मना कर दिया था। आईयूएमएल ने स्टालिन का बहाना बनाकर मना कर दिया। सबसे ज्यादा वीसीके ने विजय को चुनौती दी। 2 एमएलए के नाम पर टीवीके को खूब नचाया, क्योंकि वीसीके ऐसा कोई फैसला लेना नहीं चाहती थी जिससे स्टालिन नाराज हो जाए, क्योंकि स्टालिन और डीएमके अलायंस के नाम पर ही वो चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि बाद में वीसीके ने समर्थन के लिए हामी भर दी, लेकिन शर्त लगाकर पेंच भी फंसा दिया। लेफ्ट पार्टियों की तरह बाहर से समर्थन देने के बजाय सिर्फ 2 एमएलए होने के बाद डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही थी। वीसीके चीफ तिरुमावलवन चिदम्बरम से लोकसभा के एमपी हैं। डीएमके गठबंधन में रहते हुए वो वहां से जीते थे। उन्होंने डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। कहा था उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना होगा। उनकी पार्टी को लोकसभा सीट के साथ साथ तिरुमावलवन को विधानसभा चुनाव जिताने के लिए एक सेफ सीट भी चाहिए। टीवी के चीफ क्योंकि 2 जगह से जीते हैं, इसलिए पेरम्बूर या फिर तिरुचि ईस्ट जिस भी सीट से वो इस्तीफा देंगे, उस सीट को वीसीके को देने की मांग रखी गई। डिमांड लिस्ट इतनी ज्यादा थी कि टीवी के तत्काल फैसला नहीं ले पाई। अब ये जो पार्टियां विजय को समर्थन दे रही हैं, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि अभी भी वो गठबंधन के तौर पर डीएमके के गठबंधन का हिस्सा ही होंगी, लेकिन यहाँ पर इस बात का डर है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सिर्फ एक इस चुनौती से पार पाने के लिए इन चारों ही पार्टियों ने विजय को समर्थन दिया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि स्टालिन की मंजूरी के साथ ही ये समर्थन विजय की पार्टी को दिया गया है। तो ऐसे में क्या इन छोटी पार्टियों का समर्थन जो विजय को मिला है, उनका कंट्रोल स्टालिन के पास होगा? ये एक बड़ा सवाल है। विजय को इसके लिए तैयार भी होना होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार विजय की अब बनती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद सरकार कैसे चलेगी? क्या इन पार्टियों को वो संतुष्ट कर पाएंगे? क्या वो स्टालिन के निर्देशों पर ये पार्टियां काम करेंगी? ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक बड़ी बात राहत की विजय के लिए ये भी है कि एक बार जब वो पावर में आ जाएंगे तो इस बात की अटकलें लगातार जोरों पर है कि जो तमिलनाडु में एआईडीएमके है, उसका एक बड़ा धड़ा जो है वो बिखर सकता है, टूट सकता है। हो सकता है कि उसमें से कुछ एमएलएस रिजाइन कर दें और एक बार फिर विसिल के चुनाव चिन्ह पर उपचुनाव जीतकर विजय की पार्टी की ताकत को विधानसभा के अंदर और मजबूत बना दें। ये कॉम्बिनेशंस, ये परम्यूटेशंस की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये माना जा सकता है कि विजय के लिए सरकार चलाना बहुत आसान नहीं होगा। इन मांगों के बाद लगने लगा था कि विजय की सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन वीसीके ने आज बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। सिर्फ वीसीके ही नहीं, आईयूएमएल भी विजय को समर्थन देने को राजी हो गए। मुश्किल विजय की नंबर गेम को सेट करने भर की नहीं थी। गवर्नर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। जबकि सच्चाई ये है कि गवर्नर मैजिक नंबर 118 की चिट्ठी मांग रहे थे और जब जब विजय राज्यपाल के पास गए, उनके पास 118 का मैजिक नंबर ही नहीं रहता। तब गवर्नर की तरफ से मना कर दिया जाता था। अब जब आज विजय 118 विधायकों की चिट्ठी को लेकर गए तो अब उनको सरकार बनाने के लिए कह दिया गया। 3 बार खाली हाथ और आज चौथी बार विजय लोक भवन से सीएम डेजिग्नेट बनकर निकल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो नजारा है, काफी बहुत ही उतार चढ़ाव वाला ये सफर विजय के लिए रहा। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी विजय को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में काफी जोर लगाना पड़ा। लगातार 3 बार वो पिछले 3 दिनों में पहुंचे, लेकिन हर बार उन्हें वापस लौटा दिया गया।
जब यहाँ पर पहुंचे तो हर बार कहा गया कि उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन अब वो 120 आंकड़ों के साथ अपनी काली गाड़ी में सवार होकर आज आए और आप देखिए किस तरह से यहाँ से वो अब सीएम डेजिग्नेट के रूप में यहाँ से निकल रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमिलनाडु के इतिहास को एक नए सिरे से लिखने के लिए थलपति विजय पूरी तरह तैयार हैं। आज का घटनाक्रम भी बेहद दिलचस्प रहा। इससे पहले कल वो पहुंच गए थे इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जो है उनको इनवाइट मिल जाएगा राज्यपाल की तरफ से, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद जब वीसीके के 2 विधायकों ने समर्थन की चिट्ठी यहाँ तक नहीं पहुंचाई, उसके बाद एक बार फिर सस्पेंस हो गया। उसके बाद आज दिन भर की मशक्कत के बाद न सिर्फ वीसीके बल्कि टीवी के वीसीके के 2 विधायकों के अलावा आईयूएमएल के 2 विधायकों को भी उन्होंने अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल कर ली और एक